Welcome back everyone, and we were seeing lastly trace of A. Okay, so trace means it's sum of its diagonal elements. Is it clear? Right, trace आपका clear हो गया? So shall we try to solve this question now? Okay, so let us try to finish this. और कोई definition या और कोई new terminology कोई बाकी हो, if anyone knows? तो ये क्वेश्चन में आपको इंस्टेड ऑफ गिविंग दिस आपको ऐसा भी बोला जाएगा, इफ ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 upon x square plus 1 upon y square plus 1 upon z square. So in that case you can proceed accordingly, right? I think screen is stuck. Okay. Now see over here. So here A is x 0 x minus y 2y y z z minus z. Okay. So what will be your A transpose? So here A transpose will be, just convert row into column wise, x minus y z 0 2y z x y minus z. Now here A into A transpose will become I. Here A into A transpose will be I. So let us try to find A into A transpose. Row into column, x square plus y square plus z square, minus minus plus. So 0 into x 0 minus 2y square plus z square. चलो x square minus y square minus z square. चलो 0 into x 0, 2y into minus y, that is minus 2y square plus z square. 0 into 0 0 plus 2 to the 4y square plus z square. X into 0 0, 2y into y, 2y square plus z minus z square. Okay. X into x square plus y square, x square minus y square minus z square. 0 2y square minus z square. Is it clear? X into x square, y into y square minus minus plus z square. Okay, and this is your identity matrix. And if this is identity matrix means it should be 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Now from here, right, अब हमें इसको कंपेयर करके 1 by x square plus 1 by y square plus 1 by z square लाना है, ठीक है? So सब सही है ना, कोई गलती तो नहीं हुई? जस्ट चेक इट वंस. ओके, आई थिंक हमने a इंटू ए ट्रांसपोज कर दिया. क्वेश्चन में a ट्रांसपोज इंटू ए दिया है, isn't it? Can you see the question? Yes. क्वेश्चन में आपको दिया है a ट्रांसपोज इंटू a. And we all know that a into b is not equal to b into a. But
Now, can you hear me, students? I was just disconnected. Okay, wait. So here, let me again spotlight this video. Okay. Now see, so in this question, they have given A transpose into A equal to I, not A into A transpose is equal to I, right? And we all know that A into B is not equal to B into A. तो वो यहाँ हमारे गलती हो गई. Okay. But ऑर्थोगोनल उसके लिए होता है जब आपका A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए आपका आई हो, तो वो वाले केस में वो आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको ऐसा बोला गया है कि ए ट्रांसपोज इंटू ए आपका आई है. ओके, बट इफ ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई, हाँ यस, then definitely A transpose will be equal to A inverse. A into A transpose भी आपका I ही होना चाहिए, right? Definitely if A into A transpose is equal to I, तो if A into A transpose is equal to I, तो A transpose into A भी I होना चाहिए, right? Wait 1 minute. Here, okay, setup. Okay. So, okay, where were we? हाँ हाँ, तो सी, मैं ये बोल रहा था अब यहाँ पे दो कॉन्ट्राडिक्शन है. ऑर्थोगोनल के लिए आपके पास कंडीशन है, राइट? अगर मैं बोल रहा हूँ ऑर्थोगोनल है, दैट मीन्स ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए आई होना चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ आपको इतनी हाफ कंडीशन दी गई, ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई. बट व्हाट इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई, कैन यू से एनीथिंग अबाउट ए इंटू ए ट्रांसपोज? क्या आप यहाँ से ऐसा बोल सकते हो ए इंटू ए ट्रांसपोज आई होगा? बिकॉज डेफिनेटली यहाँ पे अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए आई है, तो ए ट्रांसपोज आपका हो जाएगा ए इनवर्स, इजंट इट, राइट? So A transpose will be your A inverse, and if A transpose is your A inverse, then A into A transpose I ही होना चाहिए, तो ये भी आपका I होगा. ठीक है, बट यहाँ से कंपेयर करके हमारे लिए काम थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मिल रहा है, 4y स्क्वायर प्लस. हाँ यस सर, ए इंटू ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इंटू ए दोनों इज इक्वल टू आई होगा तो ही ऑर्थोगोनल होता है सर. तो ही ऑर्थोगोनल होता है, मतलब एग्री. ऑर्थोगोनल का हाँ हाँ, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ए ट्रांसपोज इंटू ए आई है, तो क्या ए इंटू ए ट्रांसपोज आई होगा, मैं वो पूछ रहा हूँ. सर, ए इंटू ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ना. ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ना. ओके, नहीं सर, एटी भी ए इंटू ए ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक होता है. ए इंटू ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है. ओके, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज आपका आई यहाँ पे होगा कि नहीं होगा? होगा सर. होगा ना. ओके, सो बस भाई ए इंटू बी आई है, तो डेफिनेटली बी आपका ए इनवर्स होगा, तो बी इंटू ए भी आपका आई होना चाहिए. ओके, और किसी के लिए इंटू बी इंटू ए सेम नहीं है, बट आई के लिए आपके होने चाहिए. ओके, सो अब यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, बट यहाँ पे बस हमें ये दो कंडीशन मिल रही है सबसे पहले. या सी, हमें 1/x² प्लस 1/x² प्लस 1/z² चाहिए, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगा x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 1. ठीक है, फिर आप इसको कंपेयर कर रहे हो, तो -2y² प्लस z² इक्वल टू 0. ओके, तो यहाँ पे आपका z² हो जाएगा 2y², मतलब z को आपने y में कन्वर्ट कर दिया. अब देखो क्या कहीं से आप x को y में कन्वर्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे भी आपको 2y² माइनस z² 0. तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से
यहाँ से सेम कंडीशन मिलेगी। ठीक है, अब इसको करते हैं। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जेड स्क्वायर हमारा 2y स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, वो माइनस 3y स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर 3y स्क्वायर मिलेगा हमें। सो नाउ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3y स्क्वायर, जेड स्क्वायर इक्वल टू 2y स्क्वायर। अब वो सारी वैल्यूज अगर मैं यहाँ पे रखूँ, सो आई विल गेट 3y स्क्वायर plus y square plus 2y square equal to 1. 3 plus 2 5 plus 1 6, y square equal to 1. So definitely y square equal to 1 by 6. Now if y square is 1 by 6, then x square is 3 by 6. Okay, यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा. Then x square is 3 by 6, that is half. Okay. And z square is 2 by 6, that is 1 by 3. So 1 by x square plus 1 by y square plus 1 by z square. So 1 by x square 2, 1 by y square 6, 1 by z square 3. 6 plus 2 8 plus 3 11. Okay, is it clear? और जो आपको क्वेश्चन में दिया है, आप a ट्रांसपोज इनटू a करोगे तो डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा, मतलब डायरेक्टली आपको वैल्यूज मिल जाएंगी x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर की। ओके, सो यहाँ पे यस ऑप्शन बी है आपके पास 11, राइट? ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। सो shall we move to next question now? क्वेश्चन 9 के बाद क्विकली, राइट? ये पता चल गया, ये क्वेश्चन की वजह से हम बहुत सारी टर्मिनोलॉजी सीखे। हाँ यस सर, अभी हमें जो A इंटू ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स मिला है ना, हाँ हाँ उसको हम अगर ट्रांसपोज लेंगे हाँ तो मेरा हो जाएगा A ट्रांसपोज ट्रांसपोज इंटू ए हाँ ट्रांसपोज। हाँ वो A इंटू ए ट्रांसपोज ही होगा। ओके यस। सो वो ए ट्रांसपोज इंटू ए मिल जाएगा, एग्री। इसका अगर मैं ट्रांसपोज लूंगा तो मुझे मिलेगा ए ट्रांसपोज इंटू ए, यस। हाँ, तो वही मिलेगा। ओके ओके, मतलब यही मिल रहा है। ओके ओके, बट समझो अगर यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करते हैं ना, यहाँ पे आप ए ट्रांसपोज इंटू ए करते हैं ना, तो ये रो और ये कॉलम, तो पहली टर्म ही आपको मिल जाती एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वहां से एक्स स्क्वायर आपको मिल जाता हाफ। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम में आपको सारा y वाला ही मिलता, वाई स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, isn't it? मतलब 6y स्क्वायर तो 1/6। और यहाँ पे थर्ड रो थर्ड कॉलम में सारा z वाला मिलता, तो डायरेक्टली आपको 1/3 मिल जाता। ओके, तो ये मैं कहना चाह रहा था। Now सौमिक इज टेलिंग 15, मतलब क्वेश्चन नंबर 15 आप बोल रहे हो, पर क्वेश्चन 9 के बाद पहले 10 12 फिर 15 फिर 17। ओके चलो, ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स, इफ x is equal to a 2x2 matrix A B 0 1, then what will be the value of x to the power 10? x to the power 10 की वैल्यू क्या होगी?
चलो, if x is equal to a b 0 1, then what will be the value of x to the power 10? बोलो ऐसे करेंगे तो सब स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर फाइंड करते हैं, फिर एक्स क्यूब फाइंड करते हैं, फिर उस तरीके से सोचते हैं कि एक्स टू द पावर 10 क्या हो सकता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे। सो हियर फॉर एक्स स्क्वायर it will be a b 0 1 into a b 0 1, तो आपको मिलेगा फर्स्ट रो इनटू कॉलम, दैट इज a स्क्वायर, रो इनटू कॉलम a इनटू b प्लस b, 0 इंटू 1, तो वो आपका हो जाएगा 0 प्लस 0, 0 इंटू बी 0 प्लस 1 इंटू 1। ओके, सो ये मुझे मिल रहा है एक्स स्क्वायर। ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट स्टेप में आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, b कॉमन a प्लस 1। ओके, सो लेट अस ट्राई टू फाइंड एक्स क्यूब। एक्स क्यूब आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। एक्स स्क्वायर ऑलरेडी अब हमारे पास है a स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन के लिए अभी आप जैसा चाहे उसको रख सकते हो, हम b इंटू a प्लस 1 ही रखते हैं। चलो, so a square into b into a plus 1, here in second row 0 1, and here we are having a b 0 1. Okay, so x cube ये आपका हो गया x square into x। चलो, फर्स्ट रो इनटू कॉलम, तो a स्क्वायर तो a स्क्वायर ही रहेगा। सेकंड a स्क्वायर इनटू b, दैट इज योर a स्क्वायर b प्लस b a प्लस 1। फिर यहाँ पे 0 1 a 0 0 0 1, तो 0 इंटू बी प्लस 1 इंटू 1 1। ओके, और ये जो आपकी सेकंड टर्म है, हाँ, ये जो आपकी सेकंड टर्म है, इसको आप सिंप्लीफाई करो तो लास्ट में क्या लिख सकते हो, बी कॉमन ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। तो अगर ये एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का आप ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि हर बार एवरी टाइम your this three elements will be same, those elements will be a square, sorry it is a square, 0 and 1। वो आपके सेम कैसे आएंगे, बिकॉज कभी भी आप देखो, ओके, सो फोर्थ एलिमेंट है आपका 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम आपका 1 ही आ रहा है मल्टीप्लाई करके, उसके नेक्स्ट स्टेप में भी यही होगा, क्योंकि इसके साथ ही आप सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो ये तो 0 1 रहेगा, राइट। या इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आपका सेकंड रो रहेगा, ये सेकंड कॉलम रहेगा, तो वहां पे भी आपको 1 ही मिलेगा 4 में। फिर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब के साथ आप इसका ये टर्म देखोगे तो वो ऑलवेज आपको 0 ही आएगा, अगेन हियर ऑल्सो, ठीक है। और ये ऑलवेज आपका ए स्क्वायर ही आएगा, बिकॉज इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। या ये ए क्यूब होगा ना, यहाँ पे ये ए क्यूब होगा, माई मिस्टेक, तो ये आपका ए क्यूब होगा, ठीक है। तो 0 और 1 वाली टर्म आपकी सेम रहेंगी नीचे की एटलीस्ट, ठीक है। ये वाली टर्म आपकी ए स्क्वायर हो रही है, ये वाली टर्म आपकी ए क्यूब हो रही है। इज इट क्लियर? हाँ, ए क्यूब होगा। और जो आपकी ये टर्म है, ये क्या हो रहा है इसमें, ऑलवेज आपका b कॉमन रह रहा है, ठीक है। इसको ऑब्जर्व करो, यहाँ पे आया था हमारा a प्लस 1, यहाँ पे आया हमारा a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। ओके, मतलब एक्स क्यूब है तो वो a स्क्वायर से शुरू हो रहा है, फिर a हो रहा है, फिर 1 हो रहा है, मतलब a टू द पावर 0 तक जा रहा है। तो इन सेम वे अगर मैं x टू द पावर 10 फाइंड करूंगा, तो x टू द पावर 10 का क्यूब में इधर a क्यूब आया, x स्क्वायर में a स्क्वायर आया, तो यहाँ पे a टू द पावर 10 आएगा, ये 0 ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा, ये मुझे मिलेगा b। अब a क्यूब में वो a स्क्वायर से शुरू हुआ, a स्क्वायर में वो a से शुरू हुआ, a टू द पावर 10 में वो a टू द पावर 9 से शुरू होगा, a टू द पावर 9 प्लस a टू द पावर 8 प्लस a टू द पावर 7 अप टू 1। इज इट क्लियर? ओके, अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो पहली टर्म तो यही रहेगी। इस टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, बोलो, ये कौन सी सीरीज हो रही है? GP, geometric progression, right? Here your first term is a to the power 9. The first term is a to the power 9
your common ratio is a to the power 8 by a to the power 9, that is 1 by a. Okay, yes, so your sum will be a. अब हमें ये भी पता नहीं a greater than 1 less than 1 कुछ भी रख दो, r to the power n minus 1 by r minus 1, so it will be a to the power 9 r आपका हो जाएगा 1 by a. चलो होल टू द पावर n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो मुझे बोले यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, ये a टू द पावर n से शुरू हो रहा है, लास्ट टर्म है a टू द पावर 0, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी हुई 10, वो इंपॉर्टेंट है, राइट. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 10, 9 plus 1 10, so to the power 10 minus 1 divided by 1 by a minus 1. Okay, so after further simplification first term तो a to the power 9 ही रहेगा, right. This will be your 1 minus a to the power 10 whole divided by a to the power 10, 1 minus a to the power 10 divided by a to the power 10, and here 1 minus a whole divided by a. तो ये आपका a to the power 9 हो जाएगा और a to the power 9 कैंसल, तो आपको मिलेगा 1 minus a to the power 10 by 1 minus a और a to the power 10 minus 1 by a to a minus 1. So here in x to the power 10 you will get a to the power 10 0 1, फिर आपको ऑप्शन में जैसे भी दिया हो a to the power 10 minus 1 by a minus 1 और 1 minus a to the power 10 by 1 minus a. This will be your x to the power 10 और यही आपको दिया है. और b मैं भूल गया क्योंकि ये तो इसका है ना, आगे b तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है. ओके, सो दिस इज इट. तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 10 खत्म होता है. इज इट क्लियर? शैल वी मूव टू क्वेश्चन 12 नाउ? 12, 15 एंड 17, अब ये 3 क्वेश्चन आपके बचे हैं, इजंट इट? 12, 15, 17, उसके बाद कोई डाउट नहीं है. ओके, चलो. So in question number 12, they are asking for a square matrix A transpose into A will be always symmetric, skew symmetric, cancer identity matrix. तो अभी हमें हर्षा ने बताया, राइट, कि सर A ट्रांसपोज इंटू A आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, राइट. कैसे? तो वो भी हमने देखा, राइट. अगर आप यहाँ पे दोनों जगह पे ट्रांसपोज ले लो तो A ट्रांसपोज इंटू A होल ट्रांसपोज will be equal to A transpose into A transpose, which is equal to A into A transpose, right. But exactly ये आपका आ रहा है A transpose into A equal to A into A transpose आ रहा है, ठीक है. मतलब वो दोनों आपके सेम ही हो रहे हैं, isn't it? A transpose into A और A into A transpose आपके सेम ही रहे हैं. Okay, so definitely it is a symmetric matrix. चलो, shall we move to next question? अब 12 के बाद आपको 15 and 17. चलो क्वेश्चन नंबर 15. Now in question number 15, they are asking that if A is a 5 by 5 skew symmetric matrix, तो ये भी again definition से आपका clear है. If A is a 5 by 5 skew symmetric matrix,
देन ट्रेस ऑफ ए इज, ट्रेस ऑफ ए आपका क्या होगा, 0, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ओके, इजंट इट? तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रेस होना चाहिए 0, बट अब समझना, अगर ऑप्शन में यहाँ पे नन ऑफ दिस ऑप्शन भी है तो वो 0 और नन ऑफ दिस कर दिया तो वो खत्म हो जाएगा, बट एक डिटर्मिनेंट ए ऑप्शन भी है तो डिटर्मिनेंट भी निकालने की कोशिश करेंगे पहले यहाँ पे, ठीक है, समझना। तो क्या स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखाई थी? क्या मैंने आपको ये लिखाया था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सारे डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, वो सब दिखा दिया था प्रूफ के साथ? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको डायगोनल एलिमेंट्स ये होते हैं, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, क्या मैंने वो दिखाया था, आपको लिखाया था? हाँ, हाँ एबिन, वो भी नहीं लिखाया था? ये भगवान, मुझे पता ही नहीं चला मैंने क्या क्या नहीं लिखाया। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको पता है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, इट इज कॉल्ड योर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अगर ए में सारे एलिमेंट्स आपके ए आई जे, तो ए ट्रांसपोज में आपके एलिमेंट्स हो जाएंगे ए जे आई, इजंट इट? मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है, मतलब आपके सारे एलिमेंट्स ए जे आई इक्वल टू माइनस ए आई जे हो जाएंगे। इतना क्लियर पहले? ठीक है, मतलब डेफिनेटली ए एलिमेंट आपका 5 है, ए 1 2, तो ए 2 1 माइनस 5 हो जाएगा। ए 1 3 अगर आपका 3 है तो ए 1 3 ए 3 1 आपका माइनस 3 हो जाएगा। हाँ कराया था ना, क्योंकि ये तो मुझे याद है, ये मैंने लिखाया था। राइट, नाउ इफ आई इक्वल टू जे, मतलब फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, फॉर दिस डायगोनल एलिमेंट्स योर आई इक्वल टू जे, राइट, तो उसके लिए अगर मैं ये कंडीशन अप्लाई करूं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो दिस विल बी योर ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई, माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 2 ai इक्वल टू 0, तो ए आई आई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको दो प्रॉपर्टी मैं सिखा रहा हूँ। सबसे पहला प्रॉपर्टी, नोट, राइट, ये तो मैंने लिखा ही था, फिर भी एक बार। सो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। So diagonal elements of skew symmetric matrix are 0. चलो अब सेकंड प्रॉपर्टी, अब मुझे फाइंड करना है, तो ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स का केस खत्म यहाँ पे, ठीक है, दैट डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0, ये खत्म हो गया। अब हमें देखना है उसके बारे में डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे 0 देख के डायरेक्ट आंसर आप नन ऑफ दिस करोगे तो धोखा हो जाएगा, क्योंकि एक ऑप्शन है आपके पास डिटर्मिनेंट, ठीक है, तो हो सकता है उसका डिटर्मिनेंट भी 0। सो लेट अस ट्राई टू चेक इट आउट। So we all know that determinant of A transpose is equal to determinant, ये तो लिखा ही था, A transpose का determinant सेम होता है, इसलिए उसका रैंक भी सेम होता है, राइट, ये तो लिखा था ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ओके, नाउ वी ऑल नो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A transpose, A transpose को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ए, बिकॉज वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। A transpose इज इक्वल टू माइनस ए बिकॉज इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो अब माइनस को डिटर्मिनेंट से बाहर निकालना है, तो क्या ये प्रॉपर्टी लिखाई थी, k इंटू ए एन बाई एन, उसका मैं डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ तो हो जाएगा आपका k टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a n बाई n। ये शायद एडजॉइंट वाला कर रहे थे तब ये दिखाया था मैंने, ये ओके, हो गया है ना ये भी। तो यहाँ पे भी आपका -1, माइनस इज नथिंग बट योर k कांस्टेंट जो मैट्रिक्स से बाहर है, और जब आप उसे डिटर्मिनेंट से बाहर निकालोगे तो वो -1 टू द पावर n बन के बाहर आएगा। So -1 to the power n, determinant of A equal to determinant of A over here. Now here n is equal to 5 in this question. It is 5 by 5 matrix. So n is equal to 5. So -1 to the power 5 वो आपका माइनस हो जाएगा, तो माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट A equal to determinant A. So definitely here determinant A equal to 0. Same trick. 2 times determinant A equal to 0, so determinant A equal to 0. So what is my second property is, जब भी मेरे पास ऑड ऑर्डर, आप सम यहाँ पे n इवन होगा तो कुछ नहीं मिलेगा, राइट, सो whenever you are having odd order skew symmetric matrix, so for odd order skew symmetric matrix your determinant A is equal to 0. Is it clear? क्या ये चीज पता चली?
और ट्रेस तो आपको अभी मैंने सिखाया, ट्रेस मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आपका ट्रेस भी 0 हो रहा है और ये भी 0 हो रहा है। ओके, सो इसीलिए आंसर क्या आएगा? डिटर्मिनेंट। दैट्स व्हाई इट इज ट्रिकी क्वेश्चन। और जेई में हम ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसे सेम ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, सो शैल वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? हाँ हाँ, यहाँ हर्षा, यस, वही सेम। और अगर मैं आपकी जगह होता तो फर्स्ट टाइम मैं भी यही गलती करता। एंड मैथ इज ऑल अबाउट लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स, राइट? सर्फ एक्सेल, दाग अच्छे हैं, सो ऑलवेज दिस स्माइली, मिस्टेक्स आर गुड, दाग्स अच्छे हैं, मिस्टेक्स करो और उससे सीखो। तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऐसा आंसर देखोगे नन ऑफ दिस, तो ऑलवेज ध्यान आएगा कि चलो कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा पहले। ओके, हाँ, इसीलिए तो जब भी यही सॉम है कि जब भी नन ऑफ दिस ऑप्शन हो तो संभल जाओ, वे क्वेश्चन को 2 बार चेक करो, सारे ऑप्शन आपको चेक करने हैं। व्हेनेवर यू आर हैविंग नन ऑफ दिस ऑप्शन, जस्ट फर्स्ट चेक ऑल द ऑप्शंस। ओके, नन ऑफ दिस मतलब समझो दिस इज ट्रैप, नन ऑफ दिस मतलब ट्रैप। पहले चेक करो ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, तभी आपका नन ऑफ दिस होगा। इज इट क्लियर? हाँ, so none of this means trap. You have to check all the other questions first, all the other options first. तो जब भी none of this हो, पहले सारे options देख लो बाकी के। Okay. Sure. Now ये हमने कौन सा देखा? 12 था क्या, या 15 था ना शायद, अब 17। ओके, हाँ, सर लास्ट डाउट। If delta is equal to 1 1 1 ABC, BC plus A square, AC plus B square, AB plus C square is equal to 0, then which of the following is true? Okay, so if delta equal to 0, then which of the following is true? और यहाँ पे following में आपको क्या क्या दिया गया है? A B C equal to 0, A square plus B square plus C square equal to 0, A equal to B equal to C, और none of the above। C, none of the above, trap। चलो पहले कैसे करेंगे? तो स्टेप बाय स्टेप हमें सिंप्लीफाई करना है, हमें देखना है कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा। ओके, और क्वेश्चन में कोई कंडीशन आपको दी गई है? ओके, सो हर्षा इज सजेस्टिंग टू स्प्लिट द मैट्रिक्स। ओके, वी कैन स्प्लिट इजीली ओवर हियर। और यस, ए बी सी के बारे में ओके, अलग अलग ऑप्शंस दिए गए, लेट अस सी कौन सा सही आएगा। सो लेट अस फर्स्ट स्प्लिट दिस मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, देन वी विल सी कि स्प्लिट द डिटरमिनेंट, एक्चुअली स्प्लिट द डिटरमिनेंट टर्म आएगा, वी कैन नॉट यूज स्प्लिट द मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स के लिए तो आपका सारे से स्प्लिट होता है, सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। ओके, सो लेट अस यूज दिस वर्ड स्प्लिट द डिटरमिनेंट। सो आफ्टर स्प्लिटिंग, फर्स्ट और सेकंड रो तो आपकी सेम रहेंगी, 1 1 1 ए बी सी, राइट, प्लस यहाँ पे भी आपका 1 1 1 ए बी सी। चलो ये आपका रहेगा बी सी ए सी ए बी, ये आपका रहेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0, इजंट इट? चलो अब यहाँ से हम क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, समझो, क्योंकि यहाँ से हमें सिंप्लीफाई करके हमारे ऑप्शंस तक जाना है, हमें देखना है कि किसके लिए आंसर हमारा पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे आपका 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 1 1 ए बी सी, ये है आपका बी सी ए सी और ए बी। तो अगर आप इसे ध्यान से समझो, हाँ, राइट, सो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ए, ओके। तो अगर
यहाँ पे मैं पहली रो को, पहली कॉलम को ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ए बी सी आएगा, बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ए बी सी आएगा, सी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ए बी सी आएगा। फिर वो ए बी सी को अगर मैं बाहर निकाल दूं तो यहाँ 1 1 1 बच जाएगा, ये ए बी सी हो जाएगा, ये स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो व्हाट वी विल डू नाउ इज, यहाँ पे बी सी है, ए नहीं है, यहाँ पे ए सी है, बी नहीं है, यहाँ पे ए बी है, सी नहीं है, तो फर्स्ट कॉलम को ए से, सेकंड कॉलम को बी से, एंड थर्ड कॉलम को सी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। एंड व्हेनेवर यू आर मल्टीप्लाइंग विथ एनी टर्मिनोलॉजी, आपको उससे पहले डिवाइड करना पड़ेगा उसको बैलेंस करने के लिए। सो 1 अपॉन ए बी सी, दिस इज योर ए बी सी, a square a, this is also your abc, b square b, this is also your abc,